So question is already given. So anyone solve it? So as per question, a line that is 2 to 8 meter line lying at elevation. So elevation 425 meter and line measure on photograph, that is photo length. Photo length is given 11.5 centimeter. Okay, on a vertical photograph. So the focal length of the camera is used. Focal length of camera is given how much? 18.5 centimeter. Find the scale of photograph for a terrain having an elevation of 1050. 1050. So for the elevation 1050 के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है? स्केल. Okay. So first, actual length on ground is given, that is 2280 meter, and length on photograph is given 11.5. So from these two value we can find the scale of photograph. Okay, a scale of photograph. So what is the scale of photograph? That is photo length divided by actual length. So photo length is given 11.5 centimeter and actual length is given 2280 meter, and this is also equal to by the formula FH minus H. So focal length is also given. This elevation for 25 meter is also given. So we can also calculate 11 divided by 2280 equal to how much? F value is given 18.5 divided by H is unknown and a small h is given 425 meter, that is elevation. So find the value of H. Find the value of H. So if H is known, then again find the scale of photograph for the this value is changed. A scale of photograph for the elevation 1005. So this value is changed and find the scale. So first find the H and then put the H average at the place of 420, put the value 1050 and find the scale of photograph. So calculate everyone. Please calculate this value. कितना आ रहा है? Calculate first the value of H. This is the flight height. Calculate this value H from this equation and then put the H average.
Answer. Please answer anyone. What is the value of h? किसी का सॉल्व हुआ है? कितना टाइम लगता है कैलसी यूज करने में? मैम मेरा हुआ है लेकिन पता नहीं गलत। बोलो कितना आ रहा है आंसर? गलत क्यों है? सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। 4092.826। 4092.826. 4092.826 मीटर। Okay, so this is correct value. So तुम डर क्यों रहे थे पहले ही? This value is correct. So this is the h value. You have h value. So again find the scale of photograph. So how scale the photograph is calculated for this elevation? So put this value in the place of 425 and h value is already calculated, that is 4092.826. So put this value h, calculated value, and at this place 425, put this value and find the s. Find the s. So calculate. कितना आ रहा है? Scale of photograph is how much? Anyone calculated or not? Answer me value of scale of photograph, new scale of photograph, if h average is 1050 meter. That is s equal to f is same, that is 18.5. H is calculated 4092.8 minus 1050. This is very simple. So find this value, f divided by h minus h.
कितना आंसर in fraction in 1:, something, just a scale, find the scale. That is 1/164.77 meter. Is it correct or not? Just check, cross check it. It is correct or not? किसी का ये आंसर आया है 1:16447.7 in centimeter. Is it correct or not? राइट है मैम 164। इतना टाइम बाद रिस्पॉन्ड आया, क्यों? कुछ प्रॉब्लम हो रही थी नहीं। नेटवर्क में? तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मतलब वन वे डिस्कशन बस होता है क्या? इतना मेंटर मेंटी मीटिंग ज्वाइन करते हो, कोई फायदा नहीं होता है? पैसे लग रहे हैं तुम्हारे बोलने के लिए, पैसे तुम दे रहे हो यहाँ पे पढ़ने के लिए। मैम समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? सिंपल सा फॉर्मूला है, और नहीं भी समझ में आया तो बोलते क्यों नहीं हो कि नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया बताओ? कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? इस मैम point पे स्केल का समझ में नहीं फॉर्मूला आया? क्या स्केल का बताओ मैम फिर से? स्केल का फॉर्मूला नहीं पता? कितने बार तो मैं अभी आज ही के क्लास में बताई हूँ। स्केल इक्वल टू एफ डिवाइड बाई एच माइनस एच। एच इज द फ्लाइट हाइट, एच एवरेज इज द एलिवेशन फ्रॉम द datum of the object, f is the focal length, s is the scale of photograph. मैम जो 105 वैल्यू 1050 मैम That is the सेंटीमीटर में new है। value of h that is given in question. Question write down किए थे? नहीं लिख पाया जरूरत ही नहीं होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, क्या दिया हुआ 1050। क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझो कि क्या है वैल्यू दिया हुआ, क्या मीनिंग है उसका। कुछ भी पढ़ना नहीं चाहते हो, समझना नहीं चाहते हो। इस बार जो सेकंड एग्जाम होगा ना, सबके सब कम मार्क्स लाने वाले हो। अगर किसी का ज्यादा भी आया ना, सबका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, कौन रिस्पॉन्ड करते हो नहीं करते हो, सबका मैं 50% रिड्यूस कर दूंगी मार्क्स, अगर किसी का 30 आउट ऑफ 30 आया तो। कुछ भी पूछो, पता नहीं होता है, पता नहीं मार्क्स कैसे ले आते हैं। अरे मैम बोल रहे कि यहाँ पे 16475 पॉइंट में होगा ना मैम, तो 77 है मैम। इतने देर बाद क्यों बोले? और 164.77 हो या 66 हो, उससे ज्यादा मैटर नहीं करता है। दैट इज सेम थिंग, अप्रोक्सीमेट इक्वल। इतना टाइम क्यों लगा कैलकुलेशन में? सिंपल सा कैलकुलेशन था, और जब कैलकुलेशन कर लिए थे तो जवाब देना चाहिए था। मैम डाउट रहता है, गलत ना होता है, इसलिए नहीं बोलते हैं। डॉट रहता है तो डॉट फिर अपने ही पास रखो। डॉट क्लियर हो गया? अभी बिना कुछ बोले डॉट क्लियर हो गया जब मैंने आंसर लिखा तो? मैम इसको 1:2 मैम वैसा में लिखना मैम। कैलसी तुम्हारे पास है, 1:2 में कैसे कन्वर्ट होगा? मैम इसको फाइनल पॉइंट में लिख सकते हैं कि नहीं मैम, जैसे 6.06 ऐसे करके आ रहा है तो मैम। अभी अभी इतने सारे डॉट्स
हुए जा रहे हैं। तब से मैं पूछे जा रही थी तो किसी को आंसर भी देने में प्रॉब्लम थी। अब ये सिंपल था, इतना भी समझ में नहीं आता कि पॉइंट के बाद अगर कुछ माइनर प्रॉब्लम है, माइनर जो डिफरेंस है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। अभी क्या एक ही चीज पूछ रहे हो सबके सब? बेवकूफ बना रहे हो मुझे? किसी को तो कुछ आता नहीं है, कैलसी भी यूज करने नहीं आ रहा है। नो मैम, हम वो नहीं पूछ रहे हैं मैम। जैसे मैम 1/1 64.77 लिखे ना मैम, उसको फाइनल लिख सकता है कि नहीं मैम? उसको टोटल करके फ्रैक्शन कर हटा करके मैम। क्या टोटल करके लिखना है? स्केल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 1:2 रेशियो के फॉर्म में। कितनी बार मैं बोलूं? जब जो चीज पूछा जाता है ना, उस चीज का उसी टाइम जवाब दिया करो। अगर जवाब नहीं आता तो कम से कम रेस्पॉन्ड करो कि नहीं आता। नहीं आता बोलने में शर्म आती है, जबकि यहाँ पे सारे फैकल्टी को पता है कि तुम लोग को कुछ भी नहीं आता है। What is relief displacement? What is relief displacement? क्या होता है relief displacement? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का नाम सुने हो? नहीं सुने हो, फर्स्ट टाइम सुनाई दे रहा होगा रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, किसी को पता है? नो मैम। थैंक गॉड, किसी के जुबान से नो तो निकला। चेक करना एक बार, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एरियल फोटोग्राफी का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए देख लेना और एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। सो राइट अगेन अ क्वेश्चन ऑन द सिमिलर formula scale of photograph and very simple calculative question. So write question carefully. The focal length of an aerial camera is 20 centimeter and the exposure station was 3000 meter. Exposure station was 3000 meter above the MSL. So what is MSL? What do you mean by MSL? मीन सी MSL. Okay. चलो, किसी को तो पता है मीन सी लेवल। So from the MSL, the height of exposure is 3000 meter. So what is the scale of photograph? What is the scale of photograph? So given information in question is focal length of camera, that is given 20 centimeter, exposure station length, that is 3000 meter from MSL. So find a scale. Find a scale of photograph. Calculate it. इससे ज्यादा स्केल का फॉर्म, इस ज्यादा इजी स्केल का कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मूला ऑलरेडी यूज 2 to 3 times today's class. Write the formula, put the value and give the answer. क्या होता है फॉर्मूला स्केल ऑफ फोटोग्राफ का इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ?
F by H by S. Tell me the answer. Scale of photograph is how much? किसी को फॉर्मूला भी नहीं पता। कितने लोगों को फॉर्मूला पता है? कितने लोग जवाब दे सकते हो? 1 2 3 4 5 5 लोगों। कितने लोग जवाब दे सकते हो? स्केल ऑफ फोटोग्राफ। प्रीति कुमारी, प्रीति, सोनू कुमार गुप्ता, यस मैम। क्या होता है स्केल ऑफ फोटोग्राफ? मैम नहीं याद है। अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हो, बहुत सारा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बोल रहे थे, कैसे सॉल्व किए, किस फॉर्मूला पे? अभी मैं खुद खुद सॉल्व की हूँ, कितने बार फॉर्मूला मैंने रिपीट किया है। कहाँ थे क्लास में? तो तुम ज्वाइन हो तब से। मैम लेट से हुए थे और पिछले क्लास 2-3 क्लास नहीं कर पाए थे। ये 2 थोड़ा 3 उसमें क्लास की नहीं बात समझ नहीं में। है। एरियल 1 सेकेंड जस्ट सॉल्यूशन में मैंने एरियल फोटोग्राफी का क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आज, तो ये बहुत ही पहले क्लास में करवाया जा चुका है। टुडे इज योर रिवीजन क्लास फॉर प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स। बताया मैं। बताओ सत्यनारायण चौधरी। मैम फोकल लेंथ बाय फ्लाइंग हाइट में। फोकल लेंथ, बाय फोकल फ्लाइंग लेंथ हाइट। भाई यही होता है क्या? किस केस में होता है फोकल लेंथ बाय फ्लाइंग हाइट? और मैंने अभी आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं सब में ही वो फॉर्मूला यूज हुआ, तो क्या फॉर्मूला यूज हो रहा था? F by S कैपिटल S माइनस स्मॉल। क्या होता है एफ? व्हाट इज द एफ फोकल लेंथ में। एंड व्हाट इज एच एंड स्मॉल एच? कैपिटल S मतलब मैम फ्लाइंग हाइट। Flying height. And what is the small h? That is also h average. So what is the small h? मैम कंफ्यूजन में। That is the height from MSL. So in this question, this particular question, height of exposure is already given from MSL. That means h average, small h, is equal to 0. So for this particular question, we can use f by h because h average equal to 0, where why it is 0? So this height h is measured from the MSL. So now put the value. F is given 20 and H is given 300. आंसर Okay, मैम 3000, sorry, 3000. So टू calculate it. इज मैम आंसर बताया। Calculate it. How much? 2 is to 30,000। 2 is to 30,000. कैसे कैलकुलेट करते हो तुम? 2 is to 30,000 कैसे हो गया? ये 0 का तुमने इधर कर दिया, ऐसा होता है क्या? मैम What is the answer?
अभी तो मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया है, बिना कैलसी यूज किए भी जवाब दे सकते हो। अभी तो 2:30,000 कर रहे हो, क्या पढ़े हो बचपन से? मैम 2:3,000। 2:3,000। फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, तो ये जीरो कहाँ गया? 20 का ये जीरो कहाँ गया? क्या किए इस जीरो के साथ? मैम मीटर में चेंज किए तो मैम 0.2 हुआ ना मैम। मीटर में चेंज किए? यस मैम। और एच अच्छा, मेरा तो मीटर क्या में दिया आंसर हुआ आ ना रहा मैम। है? So what is the answer? I want the answer in 1:2 ratio. 1 is to 1500. 1 is to 1500. 1:1500. So this 1500 is in meter or centimeter? मैम स्केल है तो मैम यूनिटनेस मैम। ठीक है, लेकिन मैं ये 1500 का सिग्निफिकेंस पूछ रही हूँ। मीटर में मीटर। So that means your solution is 1. What is 1? तुम ये स्केल को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 मीटर इक्वल टू 1500 मीटर। इस स्केल को तुम कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यस मैम 1 मीटर इक्वल टू 1500 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1500 मीटर। यस मैम। Is it correct? Please answer anyone, it is correct or not? तुम्हारा बैचमेट सही बता रहा है? Just tell me. सोनू कुमार गुप्ता, प्रीति, अनुज ओरांव। Yes, ma'am. अनुज ओरांव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। तुम्हारे दोस्त ने क्या बताया, क्या आंसर दिया? Yes, ma'am. 1/1500, ma'am. Your voice is not clear. Yes, ma'am. 1/1500. 1/1500 मतलब क्या? उतना आंसर आया मैम। 1/1500 का इसके सिग्निफिकेंस क्या है, वही तो मैं जानना चाहती हूँ। 1/1500 that means what? that means scale मैम। ओके, और स्केल रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है? 1/1500 का सिग्निफिकेंस क्या है इसका? मुझे वर्ड में मतलब बताओ। यानी 1 स्केल का यानी 1500 मीटर होता है मैम। कौन बता सकते हो? One is to 1500 that means what? Is it 1 meter equal to 1500 meter or 1 centimeter equal to 150 1 centimeter equal to 1500 centimeter or 1 centimeter equal to 1500 meter? What it is? क्या है सिग्निफिकेंस इसका? One by 1500, that is 1:1500. So what is the significance? Either 1 centimeter equal to 1
1 centimeter equal to 1500 meter, 1 meter equal to 1500 meter, or 1 centimeter equal to 1500 centimeter. Which one is correct? मैं statement भी लिख दे रही हूँ. This is the scale. Satyanarayan Chaudhary calculated this scale. So this is meaning 1 meter equal to 1500 meter, or 1 meter equal to 1500 centimeter, or 1 centimeter equal to 1500 centimeter, or 1 centimeter equal to 1500 meter. Which one is correct? Also one can write here 1 centimeter equal to 1500 centimeter. So which one is correct? क्या कहना चाहते हो तुम? तुमने जो मैम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू मैम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1500 मीटर मैम. 1 centimeter equal to 1500 centimeter. Is it correct? Your one batchmate is said that. So Satyanarayan Chaudhary, is it correct? Anuj is said correct or not? Repeat again, ma'am. कौन सा statement correct है? There are 4 statements of this scale value. So which statement is correct? For this scale value, there are 4 statements. So which statement is correct? Anuj is Ma'am, said ऐसे 1 ma'am, centimeter equal to 1500 meter. मैम ऐसे Yes. दोनों ऑप्शन करेक्ट है मैम. एक ही ऑप्शन मैम, फर्स्ट में मैम जो हम किए हैं. First option, according to you, first option, that is 1 meter to 1500 meter. Yes, ma'am. किसी को ऑब्जेक्शन है इससे? बाकियों का क्या है? बाकी इसमें लोगों मैम को समझ ऑब्जेक्शन में है आ मैम. रही है? जो लास्ट है ना मैम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1500 सेंटीमीटर मैम, उसमें क्या है बोलो? मैम अगर जो 1500 मैम 3000 मीटर में दिया हुआ है मैम, तो उसको और जो फोकल लेंथ दोनों का यूनिट सेम रहेगा, तभी ना मैम फोकल लेंथ दोनों का सेम यूनिट कर सकते हैं मैम. स्केल निकालने के लिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए. You have already calculated. यस मैम. So तुमने क्या किया? यूनिट तुमने सेम किया? यस मैम. Okay, in meter और सेंटीमीटर? मीटर सेंटीमीटर टू मीटर. Okay, so why your batchmate is said 1 centimeter, 1 meter equal to 1500 centimeter? That is the second option. It is correct? नोट मैम. Any others, please answer. Sonu Kumar Gupta and Preeti Kumari. Sonu? Yes, ma'am. Is it correct? Is it correct or not? Ma'am, first option correct. Anuj Rao saying no. Ma'am, no correct.
मैम 1 centimeter equal to 500 centimeter, not correct, मैम. Hello, मैम.